All right, everyone over here. Pricing and valuation of forward commitments. Let's continue. So we had been looking at the pricing part last day कि किस तरीके से forward is equal to spot plus interest plus storage minus benefits. उसका variation for equity, bonds, what do you call it, currency and commodities we had already seen. उसमें इक्विटी का डिविडेंड रेट कैन बी डिस्क्रीट कंटिन्यूस. तो अपने बेसिक्स एक एक एग्जांपल करके सारा चीज किए थे. वी विल स्टार्ट विद द बुक सम्स एंड ऑल आल्सो टुडे, बट let me get into the valuation part because the order in which they've given is a little haphazard, right? So let me do the valuation part first. Now say suppose I'll give you a question like this. देखना बहुत interesting question है. That's it. Let's start with an easy one. फिर I'll add dividend to it. देखिए question. Take this down quickly. A couple of more examples and then we'll start with the book. Don't worry. Done. Now be very careful and observe what we are doing for the solution. We are not going to be mugging up any formulas over here. Formula derive करके दिखा दूंगा और use नहीं करेंगे आप लोग बिल्कुल भी. Now A entered into a 6-month forward contract 2 months back. So today's time 0. 2 months back he entered into a contract to buy Tata Motors at the rate $450. Rupees जो भी है Tata Motors है rupees ले लो. So A entered into a 6-month forward contract 2 months back. Today's time 0. At time minus 2 months, that is 2 months back, he entered into a contract. If he's entered the contract over here for a 6-month forward, यहाँ से यहाँ will be what time period? 4 months. 4 months पे, let's say A has contracted that he will give 450 and he will receive Tata Motors का share. Time 0 पर he has contracted that he will give 450 and he will receive Tata Motors का share. That is the contract that A has entered into, right? Everybody following? That is the contract that Tata Motors A has entered into. That Tata Motors का अपने एक stock खरीदेंगे 450 दे करके, right? Alright. उसके बाद में 2 months पहले this guy has entered into this contract. Now time 0 पे आपको बोल रहा है कि today the stock price of Tata Motors is equal to 440. And the risk-free rate of return is given as 7%. Now it's asking you, how do I exit this contract? कौन किसको कितना पैसा देगा? How do you get out of the contract? यहाँ पर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब ये जो 450 डिसाइड हुआ था वो यहाँ के स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्लस स्टोरेज माइनस बेनिफिट्स करके यू कैलकुलेटेड दी फॉरवर्ड प्राइस. दैट इज हाउ यू कैलकुलेट दी फॉरवर्ड प्राइस. दैट इज प्राइसिंग. जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो द एग्जीक्यूशन विल हैपन इन द फ्यूचर बट द प्राइस एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस आर गोइंग टू बी डिसाइडेड टुडे. दैट इज द प्राइस ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. When you're looking at maturity, यहाँ पे अगर टाटा मोटर्स का प्राइस 440 होता तो he would have been having a loss of 10.
बिकॉज इसको वही चीज 450 में खरीद करके मार्केट में 440 में बेचना पड़ता, तो उसका 10 का लॉस होता कैश सेटलमेंट. सो द पे ऑफ वुड हैव बीन -$10 or 10 rupees to A in case he would have held this contract or this position until maturity. Maturity तक होल्ड करता तो जाकर के -10 का लॉस इसको होता. Everybody yes or no? ये सिंपल है. Now we are talking about over here is कि time 0 पे you are going to get out of the contract. That is 2 months between the forward contract period. You want to get out of the contract. Who's going to pay whom how much amount of money? That is what we're trying to find out over here. कौन किसको कितने पैसे देगा to get out of the contract? That is what we are looking at over here. Is everyone following? So 440. That is the current price over here. 440 is the current price over here. अभी किस तरीके से you will contract? यहाँ अगर contract cancel होगा तो A entered into the contract with let's say B. तो कौन किसको कितने पैसे देगा to exit the contract over here? That is what we need to calculate and that is known as the value of the forward contract. Futures का भी valuation करेंगे तो more or less यही होगा. We will do the differences later. But valuation of the contract matlab if during the tenure of the contract anybody is exiting the contract, then who's gonna pay whom how much amount of money, right? Now how do we calculate that value of the contract? Let me just say for example calculate the forward price. Let me calculate the forward price of 4 months from time 0. Assume करो यहां पे A ने प्लस का पोजीशन लेके रखा था. Let's say A माइनस का पोजीशन यहां लेता है. A took a plus position over here. Let me say that A will take a minus position over here. Basically हम लोग क्या करते हैं ना, let A or let the forward buyer or seller take an ulta position for the remaining time period. Let A take ulta position, offsetting position for the remaining time period. Just give me 2 minutes. एक बात बताइए, यहां पर फॉरवर्ड प्राइस 4 मंथ्स का फॉरवर्ड प्राइस कितना होगा? 440 into 1.07 to the power 4/12. बताओ आंसर इसका क्विकली. 440 into 1.07 to the power 4/12. That will be the forward price over here. There is no storage financial instruments and I've assumed dividend is 0 for the time being. 450.03. बैड लक. एक काम करिए ना प्लीज, इसको 420 कर दो, तुम लोगों को सूट भी करेगा. 420 into 1.07 to the power 4/12. Just change that please. Just change that please. 429.57. So 429.57 is the forward price at time 0. ना एक बार कॉन्सेंट्रेट करिए, बाद में कॉपी करना. सो टाइम 0 पे अगर मैं 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं तो व्हाट विल हैपन? टुडे नो कैश फ्लो विल बी एक्सचेंज्ड. यू आर एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. आज तो कुछ नहीं होने वाला है. 4 मंथ्स के बाद में मैच्योरिटी पे व्हाट विल हैपन? ए इज सपोज टू गिव टाटा मोटर्स का शेयर एंड ही इज सपोज टू रिसीव 429.57 ओवर हियर. टाइम 2 मंथ्स पहले 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, आज जाकर के 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी सेट और एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम पीरियड, राइट? द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. द कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी विल बी कोइंसाइडिंग, राइट? 2 मंथ्स के पहले 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट, आज 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का दोनों कॉन्ट्रैक्ट तो सेम टाइम पे ही होगा वर्कआउट. अब यहां पर इफ यू सी टाटा मोटर्स का प्राइस कुछ भी हो मार्केट में, एक हाथ से टाटा मोटर्स का शेयर आया, दूसरे हाथ से टाटा मोटर्स का शेयर गया. सी whatever be the price of Tata Motors, एक contract से you're getting the share, एक contract से you're giving the share. You have essentially locked in. A has locked in a net outflow of 20.43. देखो 450 जाएगा, 429.57 आएगा तो 20.43 जाएगा नेट में. That is the value. कुछ भी हो जाए मार्केट में सिचुएशन, this is going to be there. टाटा मोटर्स का कोई भी प्राइस हो जाए मार्केट में, एक हाथ से टाटा मोटर्स आया, एक हाथ से टाटा मोटर्स गया, नेट में यू विल एंड अप पेइंग 20.43 एंड नथिंग एल्स. दिस इज लॉक्ड इन, दिस इज गारंटीड, दिस इज अ लॉक्ड इन कैश फ्लो, दिस इज अ कांस्टेंट कैश फ्लो. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है 20.43 इज पेबल आफ्टर 4 मंथ्स, 20.43 का प्रेजेंट वैल्यू ए इज सपोज टू गिव एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सोचो क्या हो रहा है, ध्यान दो. यू एंटर द फॉरवर्ड ओवर हियर, एनी टाइम इन बिटवीन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी, मैं रिमेनिंग मैच्योरिटी के लिए अगर उल्टा ऑफसेटिंग पोजीशन ले लूंगा
तो I'll end up taking the underlying, giving the underlying, and net में I'll end up locking in a particular cash flow which is static, which is like stable, which is like constant. उसका present value, because that amount is payable after 4 months, तो उसका present value should be the value of the forward contract today. उसका present value should be the value of the forward contract today. बोलो, is everyone comfortable till here or not? 100% sure? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पर? Take this down, I'll do it again. एक बार लिखो, I'll do it again. और मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा अभी, ये तो बेसिक एग्जाम्पल है. I'm coming. एक प्रॉब्लम है उसका, बता रहा हूं. कॉपी दिस क्विकली. Done. So basically what we are doing is 2 months पहले आपने एक forward contract किया था. Because of the forward contract, this will be the outcome after 6 months. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर आपने बोला 450 I'll pay, I'll get the Tata Motors share. After 2 months, now you feel like getting out of the share. Now see what is happening. You contracted to purchase the Tata Motors shares at 450 after 4 months. टाटा मोटर्स का शेयर गिर गया. ऑब्वियस सा बात है, फॉरवर्ड प्लस का नुकसान है, बिकॉज हैड ही नॉट डन द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्ली ही वुड हैव बीन एबल टू परचेज द शेयर्स एट अ लोअर प्राइस इन द मार्केट. और अभी ये 420 हुआ है. आपको मन कर रहा है ना लॉस बुकिंग करने का. मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया 450 में बाय करने का. अभी प्राइस ऑलरेडी हैज डिप डाउन टू 420 एंड आई थिंक द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन टू 380 और सो. So let me do the loss booking. I don't want to continue with the contract. It is not helping me. It is going to make it a problem over here. समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, टाइम 0 पे जब आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करना है, हाउ डू आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? हाउ डू आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? दैट हु इज गोना गिव हुम हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी? सो उसका तरीका, द फॉर्मूला जो अभी डिराइव करके दिखाऊंगा, वो फॉर्मूला इसी लॉजिक पे बेस्ड है. आप लोग फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, बिकॉज द मोमेंट आई विल पुट वन डिविडेंड हियर, योर फॉर्मूलाज विल बिकम अ प्रॉब्लम. The moment I will make one continuous dividend, one discrete dividend, your formula will not work only. और ये वाला लॉजिक FRA वैल्यूएशन, फिक्स इनकम वैल्यू, बॉन्ड फॉरवर्ड वैल्यूएशन, इक्विटी, डिस्क्रीट, वॉट एवर यू वांट, कमोडिटी सब में चलेगा. ये सिंपल सा लॉजिक. रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए आई विल टेक एन ऑफसेटिंग पोजीशन. रिमेनिंग टाइम पीरियड क्यों? ताकि ओरिजिनल फॉरवर्ड और यहां पे जो फॉरवर्ड में एंटर करोगे वो दोनों का दोनों एग्जीक्यूट सेम डेट पर होगा मैच्योरिटी पर. ऑफसेटिंग पोजीशन क्यों? ताकि अंडरलाइंग एक हाथ से आएगा, एक हाथ से जाएगा. तो रिमेनिंग मैच्योरिटी के लिए यू टेक एन ऑफसेटिंग पोजीशन, यू टेक दी उल्टा पोजीशन. F प्लस किया था F माइनस करने का, F माइनस किया था F प्लस करने का. यही हमको B के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. B डिड एन F माइनस, नाउ ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो B विल डू एन F प्लस टुडे. B डिड अ माइनस अर्लियर, नाउ B विल डू एन F प्लस टुडे. B हैज अ नेट रिसीवेबल ऑफ दिस अमाउंट. तो वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू B इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड टू A इज गोइंग टू बी नेगेटिव. B का फायदा बिकॉज उसने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट 450 किया था एंड मार्केट में प्राइसेस हैव गॉन डाउन. बोलिए समझ में आ रहा है? तो A क्या किया? A and B what they will do is they will take an offsetting position for the remaining maturity. उससे क्या हुआ? एक हाथ से अनलाइन आया, एक हाथ से अनलाइन गया, बिकॉज यू टेकन दी उल्टा पोजीशन. रिमेनिंग मैच्योरिटी मतलब दी एग्जीक्यूशन विल हैपन एट द सेम डेट, सो यू गेट अ लॉक्ड इन वैल्यू. बिकॉज यहाँ का फॉरवर्ड प्राइस तो यही डिसाइड हो गया था, एग्जीक्यूशन यहाँ पे था. इधर का फॉरवर्ड प्राइस यहाँ का स्पॉट से लेकर के निकाल लोगे. ऑब्वियस सा बात है, यहां से यहां का फॉरवर्ड प्राइस निकालने के लिए यहां का स्पॉट लगेगा, यहां का स्पॉट नहीं लगेगा. लॉजिकली सोचो सब चीज कि कौन सा स्पॉट लगेगा, क्यों कंफ्यूज होने का. यहां से यहां तक का फॉरवर्ड है तो नॉर्मल स्पॉट इंटरेस्ट स्टोरेज माइनस बेनिफिट.
So that way you calculate this value, which is also known over here. So you have locked in a constant value over here. Uska present value can be exchanged over here. Either you exchange 20.43 over here, or you exchange the present value of 20.43 over here. Now the liquidity of the forward contract that you were looking at earlier in the previous level was कि B अगर नहीं माना A के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करने को तो कैसे चलेगा. अगर B does not agree कि मैं ये वाला ऑफसेटिंग लेकर के PV लेकर के लेट्स do adla badli and get out of it. That is why forward contract had a liquidity issue, but the exchange does not have a liquidity issue, because exchange may all the buyers and sellers, all the F plus and F minus is going to the same place and they are trying to do all those contracts with each other. बोलिए समझ में आ रहा है? That is the problem of liquidity. What if B does not agree? If I complicate this a little bit, be attentive. You have to be able to grasp all these things now. अगर मैं थोड़ा सा complicate करूं, A suppose ये वाला contract C के साथ कर लेगा, तो ultimately ए का एक हाथ से 29.57 जाएगा और आएगा 429 एंड एक दूसरा जन को 450 जाएगा. नेट नेट में तो ए का तभी भी 20.43 जा रहा है. बट द प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन वुड बी दैट ए नाउ डज नॉट हैव द रिस्क रिमूव, बट ही हैज डबल काउंटर पार्टी रिस्क एज एन डेरिवेटिव वाले के साथ, बिकॉज एक बी के साथ है एक सी के साथ है. कोई भी पैसा लेके भाग सकता है. सपोज फॉरवर्ड का लिक्विडिटी इशू के लिए आई एम सेइंग दैट बी नहीं माना कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट नहीं मारूंगा, तो ए सी के साथ दूसरे के साथ एक ऑफसेटिंग पोजीशन लिया. यू लॉक्ड इन द मार्केट वैल्यू, मतलब अब टाटा मोटर्स का शेयर से ए को डर नहीं है, बट बी पैसा लेके भाग जाएगा, सी पैसा लेके भाग जाएगा, वो डबल हो गया. क्रेडिट रिस्क हैज डबल्ड. यू हैव टू काउंटर पार्टीज, यू हैव टू अदर पार्टीज टू डील विद रिस्क, टू डील फॉर द रिस्क विथ. मतलब समझ में आ रहा है? और यही प्रॉब्लम फ्यूचर सॉल्व कर दे रहा है. तो फ्यूचर्स में द प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन वट एवर इज द स्पॉट प्राइस टुडे. And since everybody is going to the same place to do F plus F minus, so it's a marketplace and we'll discuss futures आगे. Futures याद करो ना, marketplace everybody does an F plus F minus. आज जाके F plus करो, 4 दिन बाद जाके F minus करना. And exchange नहीं लेता है. Exchange हमेशा दो जन का पोजीशन का दोनों का उल्टा वाला साइड लेता है. We've already done that part. Exchange doesn't take a position. Ultimately a counterparty is exchange, but एक F plus F minus होगा तभी exchange वो contract कराएगा. बोलिए following everybody yes or no? अंडरस्टैंडिंग दिस बिट. सो ये लिक्विडिटी का इशू था, इससे वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकल के आया. इससे यू गॉट दी वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी 20.43 का प्रेजेंट वैल्यू. इज एवरीवन 100% कंफर्टेबल? विल डू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स. यहां तक ठीक है? लेट मी टेक अनदर वन. ये वाला कॉपी हो गया है? नहीं हुआ तो कर लूं. आई विल जस्ट गिव यू अ सेकंड. क्विकली डू दिस. इसी सब में ऐड करता हूं, इनफैक्ट डिविडेंड एंड ऑल इसी का वेरिएशन करता हूं. एक साइड को यूएस बना देते हैं.
एक्स साइड शुड इंक्रीज बिकॉज आई बॉट द स्टॉक. सो 200 का 250 होगा. बताइए कैसे करेंगे. टेक द समथिंग, ड्रॉ द टाइमलाइन. After 8 months, yeah. X entered into an F minus for X side at the rate 200 after 8 months. वो for 8 months कर दो, sorry. और या फिर for to sell X side after 8 months ऐसे भी for 8 months. Dividend payable is 5, 10 and 15 after 1, 4 and 7 months respectively. How to exit after 3 months when price is 250? ट्राई करेंगे. I'll do it. I'll give you time. Try. Take 2 minutes. कोशिश करो एटलीस्ट. सॉरी, आंसर नहीं पता. आंसर करके दूंगा. हो रहा है. Alright guys, I'll do. Alright, इधर. Let's see. So basically, time 0 पे, when the price was 200, these were the given dividends. He entered into an 8-month forward contract. तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर time 0 से 8 months का forward price निकालना पड़ेगा. That is going to be equal to spot that is 200. या तो डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू को इसमें ऐड करो, नेट अमाउंट को यहां लेके जाओ. I'd rather, stick to one method that you follow on a regular basis. I'd rather take all the values over here. Spot
into 1.08 to the power 8 by 12. Spot plus interest, storage is 0, minus benefits. Now minus would be 5 into 7 months के लिए 1.08 7 by 12, 10 into 1.08 square root है 4 by 12 and 15 into 1.08 1 by 12. So that is the forward price. You have to be very quick with your calculators. There are a lot of calculations in level 2. बताइए answer. आंसर हो गया तुम लोग बोला ये आंसर दो. Even if you done on the calculator without this answer, you will not be able to do the sum. अच्छा, the whole thing. Good. Do this. माइनस होगा. अरे आंसर तो सेम ही आएगा. हाउ कैन यू टेक इट टू प्रेजेंट? यू हैव टू गेट दिस वैल्यू ओवर हियर. You bring the difference here, subtract 200 that from 200, then you take the net amount over here, or you take all the values over here. You can't bring the forward price over here. मतलब क्या? Forward price is decided today. The execution will happen over here. 159.08 आया कोई और का भी? 179.94. I guess a lot of people have got that. कहाँ forward price दिया हुआ है? Oh sorry, I wanted to give spot. अरे ठीक है, हम करा इसको spot कर दो प्लीज. So sorry, spot देना. Entered into an F minus for X side. Sorry. इधर. ठीक है, कोई बात नहीं. I'll do the solution. X entered into a forward F minus for X side at 200 when the price was 200. My mistake. So समय difference payable with this. Everyone. Spot price 200 है, उसके हिसाब से अच्छा तभी तुम लोग पहले बोलना चाहिए था. टाइम 0 पर द स्पॉट प्राइस इज 200. उस टाइम पे यू एंटर्ड इनटू एन 8 मंथ कॉन्ट्रैक्ट. सो फॉरवर्ड प्राइस आपका निकल के आया 179.94. सॉरी अबाउट दैट. फॉरवर्ड प्राइस आपका निकल के आया 179.94. 179.94 मतलब एक्स एंटर्ड इनटू एन एफ माइनस ना, मतलब एक्स यहां पर एक्साइड देगा एंड 179.94 लेगा. दैट इज व्हाट एक्स एंटर्ड इनटू एट टाइम 0. X entered into a contract, just rectify my mistake, for spot price is 200 today and he entered into an F minus 8 months maturity का. तो जब वो contract में enter किया तो 200 into 1.08 to the power, so the spot plus interest minus all the benefits is going to be a forward price. ये डिविडेंस का मैं बोल रहा था कि या तो इसको डिवाइड करके इससे माइनस करो और फिर यहां पूरा लेके जाओ, या फिर डायरेक्टली यहां लेके जाओ. बात तो एक ही है. मैं -5 into 1.08 to the power 7 by 12 कर रहा हूँ. What you could have also done was divide by 1.08 to the power 1 by 12, then compounded by 1.08 to the power 8 by 12. तो ultimately तो 7 by 12 से compound हो ही जाता ना. ये किए थे लास्ट पे आप लोग. You either discount it over here, then take it to the maturity, or you take it to the maturity directly. बोलो, is everybody following this or not? Sure? Okay. So basically at time 0 you end up doing this contract which gets executed at this time period. Yes. Now what happens is, अभी how to exit after 3 months, मतलब अभी यहां से 3 months हो गया. यहां पर your price is equal to now 250. So this is 1 month, this is 4 months and this is 5 months. Technically this is your new time 0 now.
3 months के बाद प्राइस 250, अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एग्जिट करोगे? हाउ विल यू एग्जिट दैट कॉन्ट्रैक्ट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इनडायरेक्टली? एग्जिट द कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? तो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टाइम 3 मंथ्स पे निकालना है। कैसे निकालोगे आप? यहां पर व्हाट इफ आई टेक एन ऑफसेटिंग पोजीशन कि x को यहां पर एक्साइड मिले और वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे, तो देखो ना, एक हाथ से एक्साइड गए, एक हाथ से एक्साइड आया, एंड नेट नेट जो भी अमाउंट होगा दैट इज अ लॉक्ड इन वैल्यू ओवर हियर। दैट इज व्हाट आई नीड टू डू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एवरीबॉडी बी वेरी अटेंटिव। तो यहां पर फॉरवर्ड प्राइस क्या है? यहां पर फॉरवर्ड प्राइस कैसे निकलेगा? फॉरवर्ड प्राइस इज अगेन वेरी वेरी सिंपल, स्पॉट प्राइस into 1.08 to the power 5 by 12 minus storage is 0 minus benefits. Now everyone be attentive, बाद में कॉपी करना। ये डिविडेंड माइनस होगा, ये होगा, ये होगा, तीनों होगा, कौन सा डिविडेंड माइनस होगा? Only 10 and 15. अच्छा, what if I had given extra information of dividends at 9 months and 12 months? Doesn't matter, that is immaterial, that's not going to be influencing anything. What matters is dividend 10 and 15 because यहाँ का spot का forward निकालना है। पास डिविडेंड तो कितना साल का कुछ भी होगा, हाउ डज इट अफेक्ट यू? एंड मेरे को तो यहां तक होल्ड करने का खर्चा नेट नेट क्या होगा उससे मतलब है, तो इसके बाद का डिविडेंड इज नॉट गोना अफेक्ट यू, राइट? इफ आई बाय अ स्टॉक टुडे, इफ आई होल्ड द स्टॉक अंटिल हियर, तो नेट नेट में बैंक को मेरे को कितना देना पड़ेगा? डिविडेंड मिलता है ना, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो यहां पे नेट नेट में बैंक को कम देना पड़ता है। दैट इज व्हाई आई एम सबट्रैक्टिंग डिविडेंड, याद करो। सो यहां पर योर डिविडेंड अमाउंट इज गोइंग टू बी 10 into 1.08 to the power 4 by 12 and 15 into 1.08 to the power 1 by 12. If you notice, these two will remain the same. क्योंकि डिविडेंड और मैच्योरिटी के बीच में तो सेम ही डिस्टेंस है ना, समझ में आ रहा है? ये सब चीज ध्यान देना होगा, दैट विल इंक्रीज योर स्पीड। यहां पे जब फॉरवर्ड कैलकुलेट किए तभी भी ये डिविडेंड और मैच्योरिटी के बीच में तो सेम ही टाइम पीरियड रहेगा। एंड इवन इफ आई एम कैलकुलेटिंग द फॉरवर्ड प्राइस हियर, डिविडेंड एंड मैच्योरिटी के बीच का तो टाइम पीरियड इज गोना बी द सेम। सो मे बी अगर ये सब चीज थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे आप लोग, यू विल अंडरस्टैंड दैट दीस टू का वैल्यू खाली कैलकुलेटर पे नहीं करने का। इवन कैलकुलेटर पे हाथ जल्दी चलता है तो यू डू इट। आई वुड पर्सनली नॉट राइट, आई विल अगेन रीकैलकुलेट, आई एम फास्टर विद द कैलकुलेटर ऑनेस्टली। मतलब इसको पेपर पे लिख करके बाद में यूज करने की जगह आई वुड रादर पुट इट ऑन द कैलकुलेटर एंड दैट फास्ट विद द कैलकुलेटर, एंड दैट्स गोइंग टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी ऑल्सो। एनीवेज, इसका आंसर 232.79. So I can here 232.79, यहां पे 179.94 आएगा, 232.79 दोगे मतलब X is incurring a loss, he shorted a stock which has increased quite significantly. तो ये कितना देगा? 232.79 minus 179.94, बताओ कितना होता है? 52.85. And इसका present value should be the value of the forward contract today. इसका present value should be the value of the forward contract today. Take this down. I will derive the formula now and I'll do some analysis over here. ठीक है, 51.98, ठीक है, यू कॉपी दिस। 51.98 आ रहा है आंसर इसका, 18। एक बार करो, समझाऊंगा इसमें काफी कुछ।
डन. ऑलराइट, नाउ एवरीवन फोकस. यहां पे जब डिविडेंड नहीं था ना, सी व्हाट एग्जैक्टली व्हाट एसेंशियली वी आर डूइंग. हम लोग फॉरवर्ड प्राइस का यहां पे यू आर कैलकुलेटिंग द फॉरवर्ड प्राइस, यू आर टेकिंग द डिफरेंस एंड देन यू आर ब्रिंगिंग द प्रेजेंट वैल्यू ओवर हियर, राइट. अपने यहां पे फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं. एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड प्राइस एंड आज का फॉरवर्ड प्राइस जो होगा उसका डिफरेंशियल विल बी एक्सचेंज्ड ओवर हियर. ऑफसेटिंग पोजीशन फॉर द रिमेनिंग मैच्योरिटी ले रहे हो तो पुराना वाला फॉरवर्ड प्राइस एंड आज का जो फॉरवर्ड प्राइस है यही तो है, ये दोनों वैल्यूज. इसी का डिफरेंस का प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट यू सपोज टू बी टेकिंग, राइट. इसी का डिफरेंस का प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट यू सपोज टू बी टेकिंग, राइट. एवरीवन फॉलोइंग. नाउ व्हाट आई एम लुकिंग एट ओवर हियर इज, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को अगर लेट्स से एक बार मॉडिफाई करके देखते हैं या फिर एक बार थोड़ा सा एनालाइज करके बना करके देखते हैं. एक बार अज्यूम करो कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है. जस्ट अज्यूम these two difference are not there. फॉरवर्ड प्राइस इसका क्या होगा, ये स्पॉट को यहां लेके जाओगे वो फॉरवर्ड प्राइस बन जाएगा. एक बार अज्यूम करो ये दोनों डिफरेंस नहीं है. व्हाट विल बी द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ 250? 250 का फ्यूचर वैल्यू. 250 को यहां लेके गए, फ्यूचर से फॉरवर्ड से माइनस किए और फिर वो डिफरेंस को यहां लेके आए. आई टेक दिस 250 ओवर हियर, subtract it from the पुराना वाला फॉरवर्ड एंड आई ब्रिंग इट बैक ओवर हियर. डोंट यू थिंक अ सिंपलर मेथड कुड बी, यही वाला फॉरवर्ड को यहां लेके आ जाओ एंड स्पॉट से माइनस कर दो डायरेक्टली. डोंट यू थिंक एन इजियर मेथड कुड बी, यही वाला स्पॉट को, यही वाला फॉरवर्ड को, पुराना वाला फॉरवर्ड को यहां लेके आ जाओ एंड माइनस कर दो डायरेक्टली. लेट मी डू इट थोड़ा सा न्यूमेरिकली फॉर यू. नाउ एक बार प्लीज बी वेरी अटेंटिव, नो कॉपिंग, जस्ट स्क्रीन पे एकदम फोकस करो. यहां पर आपने एफ माइनस का बात कर रहे हैं अपने, राइट. सो देयर इज दिस गाइस एफ माइनस. अगर f माइनस का वैल्यू निकालना है, ओरिजिनल f माइनस था तो 179.94 आएगा कि जाएगा? आएगा, जो f माइनस किया था. आज जो करोगे वो f प्लस करोगे. जब f प्लस करते हो तो अंडरलाइन आता है, रुपया जाता है, डॉलर जाता है, प्राइस जाता है, उसका जो प्राइस जाएगा. सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज अज्यूम देयर इज नो डिविडेंड. एक बार के लिए जस्ट इग्नोर द डिविडेंड पार्ट इन दिस क्वेश्चन. 179.94 आया माइनस फॉरवर्ड प्राइस इज 232.79. लेट्स से डिविडेंड नहीं है तो फॉरवर्ड प्राइस क्या होता? 250 इंटू 1.08 टू द पावर 5/12. अगर डिविडेंड नहीं होता ये फॉरवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड आंसर होता. ये फॉरवर्ड प्राइस क्या होता? 250 इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T. उसके बाद ये जो डिफरेंस आता इसका प्रेजेंट वैल्यू आप लेते 1.08 टू द पावर 5/12 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये जो डिफरेंस अमाउंट आया उसका प्रेजेंट वैल्यू यहां पे लाएंगे. एवरीवन विथ मी? This is equal to 179.94 by 1.08 to the power 5/12 minus 250. कट जाएगा 5/12. That is basically your forward price minus your forward price का present value. इसमें क्या क्या करते हैं ना, टाइम 0 से t का था. अभी इसको 0 बोलेंगे, इसको t बोलेंगे और इसको कैपिटल T बोलेंगे. तो 0 ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज टाइम 0 टू t. उसको डिस्काउंट करना है खाली t माइनस t पीरियड के लिए. द डिस्काउंटिंग इज ओनली फॉर दिस पीरियड. माइनस द स्पॉट प्राइस टुडे, स्पॉट प्राइस एट t, ये वाला t का स्पॉट प्राइस. अभी प्रॉब्लम क्या है? द मोमेंट आई ब्रिंग इन डिविडेंड ओवर हियर, दिस फॉर्मूला इज नॉट गोना वर्क. ये समझ में आया? इसको यहां लेके गए, पुराना फॉरवर्ड से माइनस किया, फिर उसका डिफरेंस को यहां लेके आए. इससे अच्छा यही वाला फॉरवर्ड को यहां लाके डायरेक्टली इसी स्पॉट से माइनस कर देने का. आई एम प्रूविंग दैट फॉर्मूला फॉर यू. फॉरवर्ड था, स्पॉट को वहां लेके गए, डिफरेंस बनाए, डिफरेंस का पीवी लिए. इससे अच्छा फॉरवर्ड को यहां लेके आ जाओ एंड स्पॉट माइनस कर दो, तो दैट शुड बी द आंसर. बट दिस वर्क्स इन अ सिचुएशन वेयर डिविडेंड इज नॉट देयर. एंड ये टी लगाने का ना, आई कांट मग अप, आई कैन मेक दिस. इसको 0, इसको स्मॉल t, इसको कैपिटल T. अभी टी लगाओ बैठ के. दिस फॉरवर्ड इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल T. जो स्पॉट है वो स्मॉल t वाला टाइम पे है और जो डिस्काउंटिंग करना है वो ये t माइनस t पीरियड के लिए करना है, 5 मंथ्स के लिए. फॉर्मूला कहां से बना है? जो मैंने आपको सिखाया उसी से फॉर्मूला डिराइव हुआ है. एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस 100%. अच्छा, नाउ द मोमेंट डिविडेंड कम्स इन, इट गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. अभी लॉजिक क्या था? हाउ डू आई रेज दिस? ये पार्ट कॉपीड है आप लोग का ना?
ये पार्ट आई एम रेजिंग, ठीक है। अभी you are not doing 250 into 1.08 to the power 5 by 12 minus this and bringing the PV over here. अपने को ये पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अभी समझो व्हाट इज हैपनिंग। फॉरवर्ड प्राइस के लिए इसको यहां लेके गए, इसको यहां लेके गए, इसको यहां लेके गए, ये पूरा फॉरवर्ड प्राइस बना नया वाला। अंडरस्टैंड, फोकस। उसको इससे माइनस किए एंड वो डिफरेंस को यहां लेके आए। दैट इज हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यस, फॉरवर्ड प्राइस यहां पे निकालना पड़ा फॉर द रिमेनिंग मैच्योरिटी, दैट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू ऑल टेकन ओवर हियर। अरे ये प्लस है, माइनस है, माइनस है, वो सब देखा जाएगा। अरे यही तो किए हैं। एंड ये वाला वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू का डिफरेंस इज व्हाट वी लॉक्ड इन ओवर हियर, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू वी ब्रिंगिंग ओवर हियर फॉर द वैल्यू। यस, उसकी जगह आप ये सारा यहां लेके गए, फिर इससे माइनस किया, फिर यहां लेके आ रहे हो। उसकी जगह what if I bring this over here, bring this over here and minus these two from here and then I subtract the forward का PV over here, वो भी तो सेम ही आंसर देगा मेरे को, वो भी तो सेम ही आंसर देगा। यहां लेके जाओ फिर माइनस करके यहां लेके आओ, या सबको यहां लेके आके माइनस करो। Either bring all values here, yeah, then you do the plus minus and then bring it over here, or you directly bring all the values over here, then you do your plus minus whatever you want. You want a proof, I'll give you a proof. What have we done? 232.79 कैसे आया? 179.94 minus 232.79 is what? 250 into 1.08 to the power 5 by 12 minus 10 into 1.08 to the power 4 by 12 minus here. 1 by 12 यही किए ना, 232.79 ये था। This was the original forward divided by 1.08 to the power 5 by 12. Can I rearrange it? इसको स्प्लिट कर दे, ये पूरा चीज ही तो डिवाइड हो रहा है। इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूं, फॉरवर्ड प्राइस 0, t पुराना वाला फॉरवर्ड टाइम 0 से t के लिए जो एंटर किए थे 1.08 to the power 5 by 12 माइनस 250 का ही कट जाएगा, स्पॉट t minus 1.08 to the power, sorry, minus 10 into 1.08 to the power 4 by 12 and 5 by 12, कितना बचा? 1.08 to the power 1 by 12 minus 1.08 5 by 12, 1 by 12 नीचे कितना बचा? 4 by 12 minus 15 divided by 1.08 to the power 4 by 12। प्लस कर दो, करना है तो इसको अब एक ही तो बात है। What is this? फॉरवर्ड प्राइस को यहां लाओ एंड स्पॉट को माइनस करो आज का, लेकिन खाली स्पॉट माइनस नहीं हुआ, खाली स्पॉट माइनस नहीं हुआ। 1 सेकेंड, आई थिंक आई मेड मिस्टेक माइनस साइन में, ब्रैकेट के अंदर माइनस ही रहेगा भाई, ये ब्रैकेट के अंदर ही माइनस था ना, ये माइनस ही रहेगा। बेसिकली फॉरवर्ड को यहां लेके आओ एंड यहां का स्पॉट माइनस करो इज फाइन, बट अगर डिविडेंड होगा तो एक्स डिविडेंड वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। स्पॉट में से यू आर सबट्रैक्टिंग द बीच का डिविडेंड्स एंड देन जो वो वाला जो स्पॉट प्राइस हो रहा है वो माइनस कर रहे हो। अगर स्पॉट नहीं होता तब तो ये चल रहा था बिंदास, डिविडेंड नहीं होता तो। अगर डिविडेंड नहीं होता तो यहाँ का फॉरवर्ड को यहाँ लेके आओ, यहाँ का स्पॉट से माइनस करो आंसर, या यहाँ का स्पॉट को यहाँ लेके जाओ, यहाँ का फॉरवर्ड से माइनस करवाओ एंड उसका पीवी लो के आओ आंसर। अगर डिविडेंड है तो यू कैन नॉट टेक यहाँ का स्पॉट प्राइस एज इट इज, यू हैव टू टेक द एक्स डिविडेंड स्टॉक प्राइस। अभी कंफ्यूजन क्या होगा, बुक इज गोइंग टू गिव यू दिस फॉर्मूला। नाउ इफ यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, एक तो डिस्काउंटिंग कितना पीरियड का करने का, कौन सा डिविडेंड का एक्स डिविडेंड लेने का, कौन सा डिविडेंड का एक्स डिविडेंड नहीं लेने का। अभी मैं इसको कंटिन्यूअस रेट एंड डिस्क्रीट रेट बनाऊंगा, देन यू विल अगेन हैव अनदर प्रॉब्लम कि व्हाट डिस्काउंटिंग, यू विल फॉरगेट टू डू एक्स डिविडेंड एंड ऑल दोस थिंग्स, किसको प्लस करने का किसको माइनस करने का, ऑल दोज इश्यूज आर गोना क्रॉप अप। You can prove the formula and I don't want you to leave the formula. I don't want to mug up the formula. कोई कहीं कोई काम नहीं आने वाला है, guaranteed. Your formula is not going to work anywhere. Why? Because ultimately you can derive the formula anywhere. Be it continuous, मैं RF continuous दे दूंगा, मैं dividend rate discrete दे दूंगा, आप formula नहीं लगा पाओगे. I'll just make this much variation. I'll give you a discrete RF and I'll give you a continuous dividend rate. You'll not be able to apply book का formulas.
लॉजिक समझ लो, डेरिवेशन क्या है, अज्यूम करो डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं है, यहां का स्पॉट का फॉरवर्ड निकाला, उसका नेट अमाउंट लेके पीवी लिया, स्पॉट को यहां ले जाके माइनस करके यहां लेके जा रहे हो, उससे बेटर इसको लेके आ जाओ यहां पर और फिर माइनस कर दो। डिविडेंड के केस में इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टॉक यू अगेन आर टेकिंग द फॉरवर्ड का पीवी ओवर हियर, सबट्रैक्टिंग स्टॉक, बट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज स्पॉट को अपने को एक्स डिविडेंड बनाने का। we'll have to make the stock price today X dividend. If there is a discrete rate, ये वाला, suppose I'll tell you that the dividend is 5% rate. In that case, your answer will be you're making 5 months के लिए X dividend. Continuous अगर होगा, that is a formula way of doing things. But even if you do it by discrete or continuous का, अभी continuous का भी एक sum कराऊंगा. I'll do both versions right away after this with a discrete rate and a continuous rate. But this part are you understanding? One method remaining period के लिए offsetting position लो, जो locked in value आएगा उसका present value निकालो. The other method is spot को यहाँ लेके जा रहे हो, इससे better forward को यहाँ लेके आ जाओ और इसी spot से minus कर दो और बीच में अगर dividends होगा तो उसको X dividend बना दो. Correct? Everybody followed? Take this part also down. I'll give you a couple of minutes. Just take this whole thing down. Let me do one example. I know थोड़ा सा लंबा टर्न है. Let me do one example, then I'll pause. Let me do one more continuous discrete dividend, then I'll pause. You will not mug up the formula. क्योंकि पता है ये सेम लॉजिक से मैं करेंसी के भी सम कराऊंगा, कमोडिटी के भी कराऊंगा एंड FRA तक का सम इसी लॉजिक से हो जाएगा. तो लॉजिक समझ लो. Take this. I'll give you a minute. फाइव परसेंट RF नहीं, वो सम करा रहा हूं, डोंट वरी. कंटिन्यूस और इसका डोंट बॉदर, प्लीज डोंट बॉदर अबाउट दिस. आई एम डूइंग दिस सम राइट अवे. गॉट इट टिल हियर?
एक काम करना ना प्लीज, इस सम को ए लिखना एंड दो और पार्ट्स दे रहा हूं, बी और सी लिखना. और एक बार देख लो फिर कॉपी कर लेना. I'll give you time. Just observe. So what we are doing is again time 0. You had your price at 200. Time 8 months. You entered into a forward contract. Forward contract ये S0 था. यहाँ पर time 0 पे T 8 months का forward करने का what is going to be the forward price? Forward price is very simply and your RF remains the same. कितना था? 8 था ना? 8%. So your forward price going over here is going to be spot plus interest minus plus storage, which is 0, minus benefits. Now benefits, since it is given in the percentage format, you will have to discount it instead of subtracting it. Answer. $203.79. ठीक है everybody? So basically x था ना, x is going to, he did an F minus, so he is going to give x side and he is going to take 203.79. That is what he entered into. 3 months के बाद, right? 3 months के बाद this guy wants to exit the contract. 3 months के बाद the price in the market ST लिखना चाहिए is 250. आप लोग क्या नॉर्मली करते, दोनों तरीका बता रहा हूं. What we should be doing is यहां से remaining time period का forward contract क्या, so यहां पर your forward contract this is after 3 months. ध्यान दो, खाली ध्यान दो, एक बार खाली देखो. I'll give you time, I'll give you 5 minutes to copy. After 3 months what's gonna happen? After 3 months your forward price that is 3 months से 8 months की मैच्योरिटी का, मैं एक बार ऐसे ही लिख रहा हूँ. टाइम 3 months पे एंटर कर रहे हो, 8 months के 5 months के मैच्योरिटी के लिए. 5 नहीं लिखना चाहिए यार ऐसे. You are entering after 3 months, you are entering into a forward for 5 months का, remaining 5 months है ना, उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या होगा? स्पॉट प्लस इंटरेस्ट 5/12. बेनिफिट्स माइनस नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट होगा परसेंटेज फॉर्म में 1.05. ऑब्वियसली इस पीरियड का फॉरवर्ड है तो इसी पीरियड का बेनिफिट्स माइनस होगा 5/12. यू कैलकुलेट द वैल्यू, कितना है बताओ? $252.99. सो यहां पर 252.99 मेरे को देना पड़ेगा. नेक्स्ट साइड लेना होगा. I'll do a प्लस कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ x ने माइनस किया था, he'll do an offsetting उल्टा कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिमेनिंग मैच्योरिटी. रिमेनिंग मैच्योरिटी के लिए उल्टा कॉन्ट्रैक्ट एंड x साइड आएगा. एक हाथ से x साइड आया, एक हाथ से x साइड गया. डजंट मैटर वट एवर इज द प्राइस टुडे. ही इज एसेंशियली लॉक्ड इन अ लॉस ऑफ क्या डिफरेंशियल बताओ, माइनस करके 20. राउंडिंग ऑफ में 0.50 वगैरह का 0.05 एंड ऑल का डिफरेंस होगा, डोंट बॉदर. 49.20. सो टुडे द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी 49.20 का प्रेजेंट वैल्यू ना 1.08 to the power 5/12. नाउ व्हाट हैव यू डन? 250 को यहां लेके गए, इससे माइनस किया और वापस यहां लेके आए. इससे बेटर मैं डायरेक्टली 203.79 को यहां लेके आता, दैट इज 203.79 को यहां लेके आता, दैट इज 1.08 to the power 5/12 माइनस स्पॉट प्राइस टुडे. यही करना था. बट बिकॉज डिविडेंड इज देयर तो इस पीरियड का जितना भी डिविडेंड होगा वो सबको माइनस करके एक्स डिविडेंड बनाना होगा. दैट वाज द फॉर्मूला वाला तरीका. एक्स डिविडेंड कैसे बनाओगे? डिवाइड बाय 1.05 टू द पावर 5/12.
खाली इस पीरियड का डिविडेंड के लिए एक्स डिविडेंड बनाना है ना आपको, दिस इज दिस, और इसको अगर इक्वेट करोगे तो यही आएगा। देखो ना 215 to 1.08 5 by 12 by this, you are subtracting this from 203.79, 203.79 माइनस ये किया तभी तो ये आया। 203.79 जो फॉरवर्ड प्राइस था माइनस स्पॉट किया, उसका पीवी लिया तभी तो ये आया। एवरीबडी फॉलोइंग? 203.79 माइनस दिस इज दिस ना, एंड यू आर टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू। इसको अगर काटोगे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या? यही बचेगा ना। 203.79 माइनस दिस डिवाइड बाय दिस इज 203.79 डिवाइड बाय दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस ओनली, ये कट जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करो तो भी सेम चीज है, लॉजिक अप्लाई करो तो भी सेम चीज है, लॉजिक से ही फॉर्मूला डिराइव होता है। Now I'll give you 2 minutes. I just need the formulas of part C. Try the C. Copy this. Try C. I'll give you a few minutes. कोशिश करके देखो। C मैं करा रहा हूँ जल्दी से, या C मैं बोर्ड पे छोड़ दे रहा हूँ। करो तुम लोग, फिर लिखता हूँ। ट्राई करो, खुद से करो C। Try C quickly. अच्छा, RF कंटिन्यूस, वी आर अज्यूमिंग बोथ द रेट्स आर कंटिन्यूस हियर, बोथ द रेट्स आर कंटिन्यूस। तुम लोग कैसे किया सम? एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूस, दोनों दे देते हैं। और फॉर्मुलाज आर वेरी इजी, थिंक 0 8 months एवरीवन ओवर हियर। इसको थोड़ा शॉर्टकट में करा रहा हूं। यहां पे फॉरवर्ड प्राइस क्या हो सकता है? फॉरवर्ड प्राइस विल बी 200 इंटू e to the power 0.08 स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस बेनिफिट्स होगा, डिवाइड बाई करूंगा इधर ही माइनस 0.05 इंटू 5 इंटू 8 by 12, दैट इज वन वे। और जो तुम लोग का मर्जी, वट एवर वे यू हैव डन, अच्छा है ना, और वेरिएशंस हो रहा है। सो इफ यू हैव टेकन द RF to be discrete and this one to be continuous, you will do it this way. If RF and dividend rate both are continuous, you will do it that way. Forward निकलेगा। यहाँ का जो spot price होगा
यहां का फॉरवर्ड निकालना पड़ेगा पहले, दिस माइनस होगा यहां का फॉरवर्ड प्राइस विच विल बी व्हाट, आइदर 250 इंटू ई टू द पावर सोचो यहां का फॉरवर्ड प्राइस क्या होगा, 250 स्पॉट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट और ई टू द पावर इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड, एंड उसका पीवी लेना होगा। एंड इधर अगर इफ यू आर गोइंग बाय दिस लॉजिक, दैट्स योर फॉरवर्ड का वैल्यू टुडे। सोचो फॉरवर्ड प्राइस निकाला माइनस जो यहां पे फॉरवर्ड निकलेगा वो उसका पीवी, एंड बुक फॉर्मूला हिसाब से करोगे तो द ओरिजिनल फॉरवर्ड प्राइस माइनस स्पॉट एक्स डिविडेंड, और ये खाली इसमें माइनस होगा। सोचो ईदवा 0.08 काट रहा हूं यार और कुछ नहीं कर रहा हूं, ईदवा 0.08 इसमें डिवाइड करेगा, फॉरवर्ड का पीवी लो और माइनस करो स्पॉट को एक्स डिविडेंड करके। डोंट फॉरगेट टू डू एक्स डिविडेंड इन केस यू आर यूजिंग द फॉर्मूला, दैट इज व्हाई नेवर रेकमेंड टू यूज दीज फॉर्मूलाज। क्या कर रहे हो, इसको स्प्लिट करो ना, इसको स्प्लिट कर दो 1.08 टू द पावर 5/12, राइट। पीवी हुआ फॉरवर्ड प्राइस का, ये नहीं कट रहा है 5/12 8/12, इधर ये 5/12 कट जाएगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू डन इज स्पॉट एक्स पीवी, स्पॉट एक्स डिविडेंड, फॉरवर्ड का पीवी माइनस स्पॉट एक्स डिविडेंड। अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ओरिजिनल फॉरवर्ड माइनस स्पॉट एक्स डिविडेंड। अब वो ओरिजिनल फॉरवर्ड माइनस स्पॉट एक्स डिविडेंड होगा कि स्पॉट एक्स डिविडेंड माइनस ओरिजिनल फॉरवर्ड होगा, दैट विल डिपेंड वेदर यू डिड एन एफ प्लस और एन एफ माइनस। सिंपल सा बात है ना, यहां एफ माइनस किया था तो ये पुराना वाला जो फॉरवर्ड है वो पैसा मिलेगा, अंडरलाइन जाएगा। यहां पर जो फॉरवर्ड करोगे एफ प्लस करोगे, अंडरलाइन आएगा, और यहां का जो स्पॉट वाला होगा वो जाएगा। सो प्लस माइनस अकॉर्डिंगली। When you did an F minus originally, then you are calculating the value. तो F minus मतलब क्या, वो प्राइस यहाँ आएगा, अंडरलाइन जाएगा ना, तो ये जो फॉरवर्ड प्राइस है वो आएगा प्लस में। देखो फॉरवर्ड प्लस माइनस ये वाला स्पॉट, बिकॉज यू टेक F प्लस ओवर हियर। F प्लस मतलब अंडरलाइन आएगा, ये प्राइस तो जाएगा, एंड वही F प्लस करते यहाँ पे, तो ये वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली उल्टा होता। हैड यू डन एन F प्लस, ये वाला F जा रहा होता तो माइनस F का पीवी, और ये जो F माइनस करते वो स्पॉट के हिसाब से पैसा आ रहा होता। बोलो समझ में आया कि नहीं? यू आर अंडरस्टैंडिंग? आई जस्ट होप एवरीथिंग एब्सोल्युटली इज क्लियर अबाउट द फॉर्मूला। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यू पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट। देखो ना, यहां पे F प्लस F माइनस किए थे, वो यहां पर पैसा देना लेने के हिसाब से किए थे, बट यू वांट टू गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हियर, तो यही वाला वैल्यू मार्केट प्राइस इसको नहीं ट्रीट करना चाहिए ना, ये मार्केट का प्राइस का पीवी लेकर के आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से डिफरेंशियल एक्सचेंज होना चाहिए। सोचो, ये तो कॉमन सेंस वाला काम हो गया। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां पे खरीदना बेचना करने के लिए, तो अल्टीमेटली यहां पे एक्सचेंज होना चाहिए डिफरेंस, बट आपको यहां एग्जिट करना है, तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट यहां का पेमेंट के लिए किया है, तो ये फॉरवर्ड प्राइस का पीवी ले लो और आज के प्राइस से सेट ऑफ कर दो। यू एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड प्राइस व्हिच विल बी एग्जीक्यूटेड ओवर हियर, यू टेक द पीवी ऑफ द फॉरवर्ड प्राइस ओवर हियर एंड सेटल इट विद द स्पॉट प्राइस टुडे। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड अगेन इज एक्स डिविडेंड। सो इफ यू स्टिल वांट टू लर्न द फॉर्मूला, it is the difference between the initial forward price and the spot price today. Please don't forget to make the spot price ex dividend for this period. Discrete है तो भी है, continuous है तो भी है, और वो अलग अलग डिविडेंड दे रहा है तो भी है, मतलब रेट है तो भी continuous रेट, discrete रेट, और डॉलर टर्म्स में डिविडेंड तो भी, ये वाला पार्ट का डिविडेंड का पीवी माइनस करने का। अब F माइनस एस की S माइनस F you will have to see. बोलो क्लियर और नॉट एवरीवन? ये तो कॉपी हो गया था आप लोग का।
Take this, quick. You should be able to come up to this by yourself without learning this. Not supposed to learn the formula. इसको खाली इजी कर रहा हूँ, कहा 3 फॉर्म में डिविडेंड दे सकता है, तो या तो डॉलर अमाउंट का डिविडेंड का पीवी मारो, या फिर डिस्क्रीट रेट से डिस्काउंट करो, या कंटिन्यूस रेट से डिस्काउंट करो. वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट. नॉट लर्निंग द फॉर्मूला एट ऑल. Done everybody till here? फॉर्मूला से बेटर वही, आई नो. मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ फॉर्मूला नहीं करने का. रिमेनिंग टेक एन ऑफसेटिंग पोजीशन फॉर द रिमेनिंग मैच्योरिटी, लॉक इन द वैल्यू, गेट द पीवी. प्लस माइनस कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, एरो देख के समझ में आ जाएगा कि क्या करना है. एंड हम लोग को तो स्टेप्स देना नहीं है, हम लोग को तो आंसर निकाल के देना है बुक के लिए. रिमेनिंग मैच्योरिटी के लिए उल्टा पोजीशन लेने का, अमाउंट लॉक इन करने का, उसका पीवी लेने का, खत्म. प्लस माइनस सब अपने आप हो जाएगा. डिस्क्रीट कंटिन्यूस कुछ नहीं सोचना पड़ेगा. आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, so that if anybody wants to still understand the book's formula, they at least have something. मैं तो बोल रहा हूँ don't learn, definitely 100% don't learn. Everyone 100% okay till here? यहाँ तक? Alright, just give me 2 minutes, we'll start with the next part.